Hello everyone. So guys, before we start this video, I have very great news for you. I understand that a lot of students have been asking for our courses, but because CET is near and obviously budgets are always tight for everybody, we are literally releasing new courses for you guys, that is CET Core and CET Core Alpha. Basically, you get everything that we offer just starting at 10,000 rupees. That's it. It is literally a throwaway. I'll explain you why. Because you get 200 plus hours of structured learning, self-paced and live both included. You get 97 high quality mock tests with all of them with ABC analysis. That is the best thing that you can do for your prep. जिसमें full mocks, advanced mocks, sectionals, area सब कुछ included है. 40 plus hours of proper weekly counseling sessions जो मैं personally सबके लिए लेता हूँ, and along with that the proper performance tracking of each and every student. And वो tracking के basis पे there are 2 performance based counseling sessions for each and every student and 2 mock buddy sessions where I will solve the mock live in front of you, give you a strategy, show you how to apply that strategy and make sure that तुम्हारा score at least मेरे counseling और mock buddy के बाद 15-20 marks से easily बढ़ जाएगा. You will understand what goes right, what goes wrong and how to correct whatever your mistakes are. So that's literally the best thing that you guys can do for your prep. तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. If you're done here, then तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा. E-books बोलो, mocks बोलो, lectures and on top of that normally हम नहीं देते but even access to our 120 group. For the people who don't know, that's a group only for the top scorers of crack every test. The best competition that ever takes the CET is in that group. Chalo. So guys, let's start the video. Hello guys. So I got a lot of requests from students and thank you for all the love that you have shown in the past few days for all the videos that we have posted for CET, CMAT, everything. I'm glad that so many students are finding our video which is कौन से question solve करने हैं, for which how many marks के लिए कितने question solve करने हैं. Students are finding it very helpful. I've literally gotten messages from students कि 15-15, 20-20 marks से directly उनके mocks के score बढ़ जा रहे हैं. So that is just out of a small strategy that I have given. So you can rest assured that we are going to teach you the best thing for whatever it is. So yeah, guys, I also got a lot of requests कि last year के जो CET के papers थे. Now this is the first time that CET ने papers release किया है. So they wanted actual solving कि CET का paper कैसे solve करना है. So let's start with the video. मैं section wise and paper wise, slot wise तुम्हें पूरा सिखाऊंगा कि कैसे अगर मैं उस paper में होता या फिर जब तुम जाओगे वो paper में तो तुम्हें कैसे वो solve करना है. And this is exactly how I teach all my toppers to solve the CET and that is why you get these amazing results. For the people who don't know, 53 students from crack aviators went to JBI and Sydenham in the last year and total 162 plus students are at JBI and Sydenham just in the past 4 years. So that's an amazing result that we have gotten and I hope that you guys are part of the same. Chalo. So let's start with it. Let's start with the QA section. Now इसमें मैं सारे sections लेने वाला हूँ. I'll try to teach in as easy a manner as possible. My assumption is that तुम्हारे basics थोड़े बहुत clear है so that तुम्हें पूरा का पूरा समझेगा. ठीक है? Now quantitative aptitude topic 1. मतलब क्वेश्चन 1. तो ये वाला फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज. देखो बड़े से छोटा जाना टफ होता है. ये छोटे से बड़ा जाओ. इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4. 24 इंटू 4 इज 96 एंड इंटू 4 का इंटू 5 करोगे. 96 इंटू 5 करोगे तो 450 प्लस 30 480. तो ये भी बराबर है. 92 इज द रॉन्ग वन. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 92. बाद में how many times the hands of a clock are at right angle in a day. Now this requires you to have a little bit of knowledge. Now देखो जब दिन चालू होता है तो basically in an entire day I'll say that 12 let's divide the entire day into 2 parts. तो समझो अगर एक क्लॉक है 2 days में 2 parts में क्यों? बिकॉज 12 बजते हैं, 12 2 बार बजते हैं ना, मतलब दोपहर के भी 12 बजते हैं और रात के भी 12 बजते हैं. इन दिस 12 hour ड्यूरेशन वन टाइम बाद में जब ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो वैसे 12 के साथ 90 डिग्री बनाएगा, 1 के साथ 90 डिग्री बनाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के साथ समझो 11 के साथ 90 डिग्री बनाने के बाद वापस 12 के साथ 90 डिग्री बनाएगा. इट विल बी द सेकेंड साइकिल, इट विल नॉट बी द फर्स्ट साइकिल, राइट. तो दिन चालू होने के बाद दोपहर तक 11 बार 90 डिग्री बनता है. सिमिलरली वापस 12 बज गए तो दोपहर हो गई, वापस 11 बार बनेगा. बट जब वापस 12 बजेंगे एट दैट पॉइंट इट विल बी व्हाट, इट विल बी द नेक्स्ट डे. सो दैट मींस एक दिन में सिर्फ 22 टाइम्स वो बनाता है 90 डिग्री एंगल. हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ राइट एंगल इन अ डे? 12 घंटे में 11 बार और टोटल दिन में 22 बार. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. लेट्स लुक एट द आंसर. अच्छा, ओ सॉरी,
अच्छा, in a day, oh I'm really sorry, this is 22 hours in a day, 22 hours in those 12 hours, because now understand this, यहाँ पे बना ऑल्सो जब 45 डिग्री, मतलब 15 पे तो बनता है, 45 पे जब बनता है, सो आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ दिस टाइम वापस 90 डिग्री बनता है. सो इन 1 आवर इट हैपेंस 2 टाइम्स. तो इन 22 टाइम्स जो होना है वो 15 मिनट्स का 22 टाइम्स होता है एंड 45 मिनट्स का भी 22 टाइम होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज 44. इन द एग्जाम आई वुड हैव बीन रॉन्ग हियर बिकॉज मैं 22 मार्क करके आने वाला था, बट ठीक है, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गो अहेड विद, तो नथिंग टू वरी अबाउट. अंडरस्टैंड द सीईटी में लॉजिक इज यू कैन बी रॉन्ग समटाइम्स but you cannot be slow ever. So make sure that you are fast. Let's check this. Find the compound interest on this for 9 months at 16% per annum compounded quarterly. Compounded quarterly, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा, so it will be 4%. 4% मतलब divided by 25. It's good that we have 156 and 9 months मतलब 3 बार मिलेगा. So this is as good as 3 टाइम का इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है. तो 15625 divided by 25 you will get 625 and 625. बाद में तुम यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा ये डिवाइड बाय 25, ये 25, यहाँ पे भी 25 एंड फाइनली यहाँ पे 1. तो ऐसा करके आई हैव टू जस्ट ऐड देम अप कि कितना मुझे एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा. So this will be 1875 plus 75. So that is 1951. The answer has to be option B, 1951. इन सबका मैंने बस टोटल कर दिया. You see the answer is 1951. So that's the right way to solve this. ये ओरली भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हें ये समझना है that 15625 25 का पावर है. अगर ये समझ गया और 9 मंथ्स और 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली का लॉजिक समझ गया, देन यू अंडरस्टैंड द सम इज वेरी इजी. ये सम लिटरली मैं लेक्चर्स में ओरली सॉल्व करता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स. या अ पर्सन डिवाइडेड 10,800 अमंग हिज 3 सन्स इन 3:4:5 का रेशियो. 3:4:5 मतलब 12 में डिवाइड होगा, पर पर्सन 900 इज 1 पीस, सो दिस वन विल गेट 2700, दिस गेट्स 3600 एंड दिस वन गेट्स 4500. And the second son kept 1,000 for him, मतलब 3600 में से 1,000 उसके पास रखा and gave 600 to his wife. तो उसने 1600 रख लिया और बाकी का 2000 का कुछ करेगा. Divided the remaining money amongst his 2 daughters in the ratio 11:9. 2000 बांटा, 1100 900 बांटा. Okay. Then one of his daughters received. उसकी daughters को मिला 1100 and 900. So that is 1100. 900 वाला कोई ऑप्शन दिया है क्या? होना तो नहीं चाहिए, नहीं दिया हुआ है. द आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी, 1100. दैट्स राइट. जल्दी से सॉल्व हो गया, काफी इजीली सॉल्व हो गया. ABC enter into a partnership and A initially invests 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year. B invests 35 lakhs and withdraws 10 lakhs after 2 years. And C invests 30 lakhs. In what ratio should the profits be divided at the end of 3 years? Understand, लगता अलग है बट A और B का इन्वेस्टमेंट सेम है, because A does 25 into 1 and 35 into 2. तो A का क्या हो जाएगा 25 plus 70 एंड B का पहले उस 35 इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, तो 70 plus 25 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट. एंड C कितना करता है, C does 30 for 3 years, तो C का टोटल 90 हो जाता है. सो इन व्हाट रेशियो विल दे डिवाइड देयर प्रॉफिट्स? It will be 95, 95 and 90, giving you 19, 19, 18. ये होना चाहिए तुम्हारा रेशियो. ऐसा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो यस इट शुड बी ऑप्शन डी एज द आंसर. लेट्स चेक. यस, इट इज ऑप्शन डी. See? Also, thank you very much for the students who actually, the student who actually sent me this. I'm unable to recollect your name, but thank you so much for sending this to me. Rohan. Yes. If 10 years are subtracted from the present age Mr. Roy and age of Mr. Roy and the remainder is divided by 14, then you will get the present age of his grandson Sachin. If Sachin is 9 years younger to Saloni whose age is 14 years, मतलब Sachin is 5 years old. What is the present age of Mr. Roy? अब देखो 10 years subtraction from Mr. Roy and remainder is divided by 14, then you should get the present age of his grandson. But Sachin का present age is 5 years. तो Sachin का into अगर मैं and the remainder is divided by 14. Sachin into 14 करूँ, that is 5 into 14, 70. 70 में 10 add करूँ तो मुझे 80 मिल जाएगा. 80 should be the age of Roy. Let's check. Again, linear equations में solve करना है. 80 is the right answer.
तो लीनियर इक्वेशंस ओरली ही सॉल्व करना है. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग दिस डाउन. तुम्हें आदत लगानी है इसे ओरली सॉल्व करने की. सम में रिवर्स इंजीनियर करो सम को, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. A number which exceeds 16% of it by 42 exceeds 16% of it by 42. इसका मतलब 84% is 42. If 84 equals to 42, then 100 will be equal to इसका आधा, that is 50. The answer is 50. It's direct cross multiplication और कुछ नहीं है. ठीक है. चल 10% of 20 plus 20% of 10. A very simple logic. ये देखो 4% of 10 and 10% of 4 is the same. तो यहाँ पे 10% of 20 दिया है and 20% of 10 दिया है. 10% of 20 is 2, 20% of 10 is 2 is equal to 4. आंसर 4 आना चाहिए. So 4 किधर है? Equals 2% of 200. तो आंसर ऑप्शन डी में 4 बैठेगा, 2% of 200. ओके, अगेन दैट्स द राइट आंसर. यू सी, pretty easy, pretty doable, and you can definitely solve this in a much lesser amount of time. I guess अगर ऐसा सीटी पेपर है तो no wonder इसका कट ऑफ 170 गया था. इससे भी ऊपर होना चाहिए. Sanket purchased 20 dozens of notebooks at ₹48. He sold 8 dozens at 10% profit and the remaining 12 dozen with 20% profit. What is his profit percentage in the transaction? ये देखो 20 dozen notebooks at 48 per dozen. Cost price देख लो 22.4. He sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 at 20% profit. तो basically एक जगह पे 8 and 12. Let's just see that इनका क्या बन रहा है. 2:3. It's direct allegation type का जो method है. I use line method which is much better than allegations. तो 2:3 यहाँ पे कितना है? The distance is from 10 to 20. The distance will be in the ratio 3:2. So that will be यहाँ पे 16% profit हो रहा है इस पे. और this profit percentage 16%. That's your answer. खत्म. It's that easy. Line method, as I say, it's one of the best methods that you can use. I teach it to students in my course. मैंने शायद YouTube पे भी कहीं बताया भी है. This is one method जिससे मैं averages, ratio, percentage, time, speed, distance, profit and loss, simple interest, compound interest, PNC के काफी सारे सम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एडवांस वाला पार्ट है वो भी इससे सॉल्व करता हूँ. टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इवन ट्रेन्स वाला एंड बोट्स वाला, ऐसे करके ओवरऑल आई यूज दिस इन 18 टॉपिक्स. मैं सिर्फ एक लॉजिक यूज करता हूँ, द लाइन मेथड. इट्स अ वेरी वेरी नाइस मेथड, but this is something that I keep only for Crackivity students. But yeah, if you're a Crackivity student, then literally trust me, तुम्हारा काम डन है अगर तुम्हें सिर्फ लाइन मेथड आता है तो. A company produces on an average 4,000 items per month for the first 3 months. 12,000 प्रोड्यूस करते हैं. How many items must it produce on an average over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole year? 4375 into 12 करो, ऑलरेडी 12,000 हो चुके हैं. जितना बचा उसे 9 से डिवाइड कर दो. दैट्स अ वेरी इजी वन. और व्हाट यू कैन डू, अनदर बेटर मेथड, एज आई ऑलवेज से, लाइन मेथड इज ऑलवेज हेल्पफुल. अब देखो यहाँ पे 3 months, यहाँ पे 9 months. द रेशियो इज 1:3. 1:3 में यहाँ पे है 4,000 एंड यहाँ पे 4375. सो दिस डिस्टेंस विल बी 375 एंड दिस डिस्टेंस विल बी ट्रिपल ऑफ दैट. तो हमें टोटल ये 4 का डिफरेंस तुम्हें निकालना है. तो 4375 इंटू 4 कर दो, अरे 375 इंटू 4 कर दो. नहीं सॉरी, यहाँ से तो दिस इज 3 parts, सो इट इज 125. इसके ऊपर 125 एंड इट विल बी 4500. The answer has to be 4500 because यहाँ पे 3:1 में डिस्टेंस होगा. अगर यहाँ पे डिस्टेंस इज 375, this will be 125, giving you 475 plus 125, 4500. Let's check the answer. I'm 100% sure वो सही ही होगा. You see, it's 4500. I'm telling you, ये सारी चीज अब तक का एक भी सम ऐसा नहीं था जिसमें लिखने की जरूरत थी. सारे के सारे ओरल सॉल्विंग थे. A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen or a club, queen of club or a king of heart. दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड्स होते हैं. और दिया है इन CET और इज इंक्लूसिव और, इसका मतलब प्लस हो जाता है. तो क्वीन ऑफ कार्ड का 1/52 एंड किंग ऑफ हार्ट का 1/52. So your answer will be 1/52 plus 1/52, giving you 2/52
or 1 by 26? So the answer should be option B. Let's see. Yes, it is option B. 8 pipes are fitted to a water tank. Some of these are water pipes to fill the tank and the remaining are water pipes used to empty the tank. Okay. Each pipe can fill the tank in 12 hours and each water pipe can fill the tank in 12 hours and each waste pipe can empty it in 36 hours. On opening all the pipes, an empty tank is filled in 3 hours. Okay. The number of waste pipes is, I'm sorry about that, I'm not feeling a little well. Some of these are water pipes to fill the tank and remaining are waste pipes used to empty the tank. Each water pipe can fill the tank in 12 hours and each waste pipe can fill the tank in 36 hours. Let's assume tank का capacity is 36 liters. तो जो water pipe है उसका capacity is +3, waste pipe का capacity is -1. On opening all the pipes, the tank is filled in 3 hours. तो द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप्स इज, अब समझो 8 पाइप्स है टोटल. सो ये जो फिलिंग पाइप्स है उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 3 इंटू जितना भी 8 माइनस n. अगर तुम वैसे करोगे तो तुम्हें इक्वेशंस बनाना पड़ेगा. ये वाला सम इक्वेशन से सॉल्व होगा अगर तुम नॉर्मली करने गए तो. इंस्टेड व्हाट आई सजेस्ट इज, इसको सॉल्व करो यूजिंग द ऑप्शंस. लेट्स सी ऑप्शन से इसको करने गए तो कितना इजीली हो जाएगा. आई ऑलवेज से ऑप्शंस में ना कभी एक्सट्रीम्स नहीं उठाने का, हमेशा बीच वाला नंबर उठाने का. तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है. तो आई विल से मैं यहाँ पे 4 उठाऊंगा. द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, तो अगर नंबर ऑफ वेस्ट पाइप दिया है तो आई विल डू व्हाट, पहले में वाटर पाइप कितने बन जाएंगे 4. तो 4 पाइप्स 3 घंटे के लिए चलेंगे और सबकी कैपेसिटी 3 आवर्स है. तो 12 36 माइनस कुछ करूंगा तो नहीं चलेगा. Why? Because माइनस मेरी टोटल कैपेसिटी 36 है तो ये नहीं चलेगा. दिस इज अ रॉन्ग. तो 4 इज रॉन्ग. 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये नहीं चलेगा. आई विल नीड 5 और 6. सो लेट्स से 5 अगर है फिलिंग पाइप्स तो 5 पाइप्स वर्क फॉर 3 आवर्स विथ 3 का कैपेसिटी, तो 9 45. एंड बाकी 3 पाइप्स है. देयर आर 3 पाइप्स विच वर्क फॉर 3 आवर्स और तीनों की कैपेसिटी 1 है. तो -1 into 3 into 3 that is 45 minus 9 giving you 36. 36 is my answer. ये पूरा टैंक एग्जैक्टली 3 घंटे में फिल कर देगा. सो माय आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 5. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस मेथड. तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे ऑप्शन यूज कर. अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप? नंबर ऑफ वाटर पाइप इज 5, वाटर पाइप इज 5 एंड वेस्ट पाइप इज 3. यस. तो इफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड तो तुम्हें समझेगा ही. नाउ अंडरस्टैंड दैट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट बाय माय सेल्फ, तो कभी कभी थोड़ा इधर उधर होता है. बट या तुम्हें लॉजिक समझ गया वो मेन है. ठीक है. यस. Of 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful candidates is 9:2. 11, 12 का multiple बैठ जाएगा. 12 into 9, 108. 108 plus 24. Okay. If 4 more students had passed, it would have been the ratio of the successful to unsuccessful students. If 4 more students had passed, तो 112 is to 20 हो जाता था. तो रेशियो कितना बन जाता रहा? 4 के मल्टीपल में दोनों बैठ जाते हैं. दिस इज 28 is to 5. आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 28 is to 5. The LCM of 145 and 185. 145, 185 दोनों का पहले डिफरेंस निकालो. अब बेस्ट वे ऑफ डूइंग LCM इज दोनों का डिफरेंस पहले. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ? -40 -3 तो 37 दोनों का डिफरेंस है. यहाँ पे हमें पूछा है LCM. बहुत लोग 37 देके HCF सोच के मार्क करके आ जाते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. 37 का मल्टीपल फिगर आउट. इनमें से 37 का मल्टीपल कौन सा है? 680 तो नहीं है. 3700 है, 2960. इट्स टू फार फेच, बहुत दूर. सबसे छोटा वाला अपने को क्या मिल रहा है? 740. ये दोनों के मल्टीपल में बैठता है नहीं, जस्ट चेक. ये जाएगा इंटू 5 एंड ये जाएगा इंटू 4. योर आंसर इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आंसर ऑप्शन है. दैट इज हाउ यू डू दिस. पहले इनका डिफरेंस निकालो. Here we have that by selling 45 lemons for ₹40, a man loses 20%. How many should he sell for 24 to gain 20% in a transaction? And let's do a very simple thing. पहले तो मुझे 45 lemons पता है, मुझे उनका selling price पता है, तो I need to find their cost price. This is already at a 20% loss. मतलब cost price will be 25% higher.
right? So if this is 80%, then 100% will be what? 50 rupees. So cost of one lemon is 50 by 45, so that is 10 by 9. This is the cost price of one lemon. Now I know that 24 lemons में मैं x lemon sell करता हूँ. 24 by x, ये cost price का 20% ज़्यादा है. So that is 10 by 9 into 6 by 5. So what I very simply have to do is just solve this for what it is. 2, 3 into 2, 3 into 3, 2 to 4, यहाँ पे आ गया 6, x equals to 18. My answer should be 18. Answer option A. Let's check. Yes, it is option 18. It is answer. Answer is 18. See? A certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covers half the distance in double the time, the ratio of the speed of the jogger to that of the cyclist is वो same distance. Always in such scenario, I always tell you that actual real life scenario बनाओ. मैं गाड़ी से जाता हूँ, मैं बाइक से जाता हूँ. मैं गाड़ी से मुंबई पुणे मतलब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं गाड़ी से 1 घंटे में कवर करता हूँ. और मैं बाइक से मतलब मेरा गाड़ी का स्पीड कितना हो गया? चलो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं कवर कर रहा हूँ 1 घंटे में, तो मैं कार का स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, राइट? अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो मैं हाफ डिस्टेंस कवर करता हूँ डबल टाइम में, मतलब मैं 2 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो मैं स्पीड इज 25. द रेशियो ऑफ द स्पीड बिकम्स गाड़ी का 4, मेरा 1. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट इज 1:4. आंसर ऑप्शन बी, बॉम्बे. Let's see. Yes, it is 1:4. A very simple question. This minus this is equal to dash minus this. इसको यहाँ पे लेके जाओ तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा. This will become 2200. इसमें ऐड कर दो 8844 इसमें से माइनस कर दो, you'll get 55. आंसर ऑप्शन सी. ये तो सब लाइक लिटरली कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी. आई गेस तुम लोग को ये ओरली समझिएगा होगा. आंसर इज 55. A can do a piece of work in 10 days working 8 hours per day if B is 2/3 as efficient as A. मतलब A की कैपेसिटी 3 पकड़ लो. So the total work is 10 days into 8 hours per day into 3 का कैपेसिटी is the total work. Then in how many days can B, जिसकी कैपेसिटी 2 है, can do it in X days working 5 hours per day? तो ये निकाल दो. The answer is 24. Answer should be option D, 24. Let's check. Yes, the answer is 24. What percentage of numbers from 1 to 50 have squares that end in the digit 1? अब बहुत ज्यादा सिंपल गाइस. 1 में what percentage of numbers from 1 to 50? कौन से ऐसे नंबर्स है जिनका स्क्वायर हमेशा 1 में एंड होगा? 1 का होगा, 9 का होगा, एंड एवरीथिंग दैट एंड्स इन 1 and 9, मतलब 11, 21, 31, 41, ये सबका सेम होगा. आई विल राइट इट नीचे 1, 11, 21, 31, 41. सिमिलरली 9 से एंड होने वाले सारे 9, 19, 29, 39 एंड 49. टोटल 10 नंबर्स आउट ऑफ 50 इज हाउ मच? 10 out of 50 is 20. So answer should be option E, 20%. Yeah, that's right. Find the wrong number in the series. Series numbers are pretty easy. Again, as I said, छोटे से बड़े जाओ. It's always better. Into 4, into 5. ये into 6 नहीं हो रहा है. तो ये नहीं चलेगा. 4096 ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है. अच्छा ओके. इंटू 4, इंटू 5, इंटू वापस 4 करो, इंटू 5 भी नहीं बैठ रहा है. 2560 भी नहीं जा रहा है. लेट्स सी क्या बैठ जाएगा. ये क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाय 4. दिस इज व्हाट? दिस 10240 डिवाइडेड बाय 2560. 0 कैंसिल एंड 256 1024. तो ये इंटू 4 कर देंगे, इंटू 4. सो डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4. हाँ, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए. 160 दैट फिट्स परफेक्टली. तो डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4. 200 इज द रॉन्ग वन. आंसर ऑप्शन बी.
325325 is a 6-digit number divisible by which from the following? सबसे पहले easiest divisibility test उठाओ, 11 से divisibility चेक करो, पीछे से चेक करो तो 5, 3 and 2 तीनों का एडिशन इज 10 एंड यहाँ पे 5, 3 and 2 तो तीनों का एडिशन इज वापस 10, तो ये 11 से डिविजिबल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. आई हैव टू जस्ट चेक 7 और 13 से है या नहीं. ओके, लेट्स चेक 7 या 13 से है या नहीं. 3, 2, 5, 3, 2, 5. I will check by 7 only. 7 into 4, 7 into 6, 7 into 5, 4, 7 into 7. नहीं 30, 28, 5, 7 into 52, 7 into 7 and 7 into 5. ये 7 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ई तुम्हारा आंसर होना चाहिए. हम 13 से चेक भी नहीं करेंगे. सेव योर टाइम, डोंट बी एन इडियट, डोंट चेक एवरीथिंग. यू डू नॉट हैव टू चेक एवरीथिंग. ओके, सीईटी में फास्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर फास्ट. A number is doubled and 9 is added. If the resultant is trebled, it becomes 75. इसका 1/3 करो, उल्टा जाओ, 75 का 1/3 करो 25. 25 is what? Double of something plus 9. तो 25 minus 9 कर दो, you'll get 16. 16 is double of what? 8. The answer should be 8. A basket contains 4 red, 5 blue, 3 green marbles. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? पहले वाले का probability is 4 by 9, 12. And दूसरे वाले का probability is 3 by 11. 3. So the answer is 1 by 11. Answer option B. काफी simple, काफी जल्दी. In what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea worth 60 and 65 so that by selling the mixture at 68.20 he may gain 10%. 68.20 is 10% of something, so that is the cost price has to be 62. 62 है and यहाँ से 2 दूर, वहाँ से 3 दूर, so the quantity का ratio should be 3:2. The answer is option C. Again, line method imagination will really help you. I'm telling you guys, line method will change the way that you solve CET. A tailor has 37.5 meters of cloth and he has to make 8 pieces of 1 meter of a cloth. How many pieces can he make out of this cloth? 8 piece out of 1 meter. तो कितने मीटर्स का वो 37 मीटर्स का वो 8 टुकड़ा बनाएगा, राइट? एंड बाकी आधे का वो 4 टुकड़ा बनाएगा. तो यू विल हैव 37 into 8 plus 4. 37 into 8, 240, 240 plus 56, 296, 296, 300. Answer should be option A, 300. Yes, the answer is option A. A man brought some oranges at 10 per dozen and brought the same number of oranges at 8 per dozen. Okay, he sold these oranges at 11 per dozen and gained 120. The total number of oranges brought by him was, उसने टोटल, चलो कोई भी डजन उसने बाय किए तो उसका टोटल प्राइस पर डजन 18 में उसका 2 डजन आ गया, तो ही बॉट डबल क्वांटिटी. हिज कॉस्ट प्राइस इज 9 पर डजन एंड हिज सेलिंग प्राइस इज 11 पर डजन. तो वो पर डजन 2-2 रुपए कमाता है एंड वो टोटल कितने डजन बाय करता है? 60 डजन शुड बी योर आंसर बिकॉज हिज प्रॉफिट पर डजन इज 2 rupees. तो दिस डिवाइडेड बाय 2 शुड गिव यू 60. आंसर ऑप्शन डी. Let's do this one. The number 5,3,4,6,7,7 is divided by 777. And I have to find the difference of the divisor and remainder. सबसे पहले divisor remainder people need to understand. This is the divisor dividend. So please be very very careful. This is the quotient and that is the remainder. ये dividend है अंदर का, तो please वो याद रखना. तो what they have asked is इसका and इसका difference. So let's check. This is some better done अगर तुम directly actually multiply कर दोगे. थोड़ा बहुत कभी टाइम डाल दो. 5, 3, 4, 6, 7, 7, 777. तो 777 यहाँ पे into अगर मैं 7 ले लूँ तो 4900 plus 490
1400 490 490 plus 49 तो 531 1400 plus 531 will give me 54 तो ये नहीं बैठेगा I'll have to do into 6 तो 777 into 6 तो 4200 420 and 42 4200 420 42 62 4662 4662 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है लेट्स एक्चुअली सब्ट्रैक्ट इट यहाँ पे 62 तो यहाँ पे 100 माइनस 38 यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 38 इसमें ऐड कर दूंगा 76 84 बाद में सो दिस इज इनटू 6 बाद में 6 8 मैं अगर 9 ले लूंगा इट विल बी 6300 प्लस 630 1600 तो इनटू 8 लेना पड़ेगा 777 इनटू 8 तो आई विल गेट 5600 560 एंड 56 5600 560 and 56 6216 अरे रे I'll get नीचे क्या आ जाएगा into 8 6216 I'll get 6 31 and 7 again मैं 8 ले लूंगा 6216 give me 101 मुझे इसका और इसका डिफरेंस निकालना है द डिफरेंस इज 676 द आंसर शुड बी ऑप्शन बी ये देखो सेम आया आंसर ऑप्शन है समझे कैलकुलेटिव सम थोड़ा मेहनत वाला है अब तक सब कुछ हमने किया है ऑलमोस्ट ओरली तो थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा इवन इफ यू हैड स्किप्ड दिस क्वेश्चन इट वाज फाइन ओके द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 if the weight of the teacher is added the average increases by 400 grams इसका मतलब क्या टीचर 35 केजी लेके आती है बाद में जो बचे हुए 25 पीपल है उनको 400 ग्राम एक्स्ट्रा देती है सो आई विल डू 25 इंटू 400 ग्राम्स दैट इज 10 2.5 यहाँ पे ले लो 1 केजी इंटू कितना 2.5 25 1 केजी इंटू 10 तो 10 केजी एक्स्ट्रा टीचर का वेट शुड बी 45 केजी because she brings in 400 grams extra for each and every person तो 45 kg again oral solving बाकी कुछ नहीं करना है right a train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at the speed of 45 kilometers per hour the time taken by a train to cross an electric pole मतलब ट्रेन का अपनी लेंथ बेसिकली इन्होंने निकालने बोली है अंडरस्टैंड क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या है दे ओनली आस्क्ड ट्रेन का लेंथ बताओ और बाद में उसको कितना टाइम लगेगा 45 किलोमीटर पर आवर पे करने के लिए ट्रेन की स्पीड क्या है ट्रेन कितना ट्रैवल करती है 45 इंटू 18 इंटू 5 बाई 18 इंटू 60 सेकेंड्स तो ट्रेन टोटल कितना ट्रैवल कर रही है सो 18 9 इंटू 5 9 इंटू 2 9 इंटू 30 और 25 इंटू 30 750 दिस इज द टोटल ट्रैवल ऑफ द ट्रेन जिसमें से 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन का लेंथ है 650 मीटर्स तो ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने कितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय द स्पीड 45 इंटू 5 इंटू 18 9 into 2 9 into 5 25 into 4 into 6 24 24 plus 2 26 the answer should be 26 into 2 52 seconds answer option A होना चाहिए yes it is option A see in every 30 minutes of the time of a watch increases by 3 in every 30 minutes the time of a watch increases by 3 minutes after showing the correct time at 5 am what time will the watch show after 6 hours 3 मिनट में वो टाइम इंक्रीज होती है 3 मिनट 30 मिनट्स में 3 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम इंक्रीज होता है तो 6 घंटे में कितना इंक्रीज होगा 3 इंटू 12 दैट इज 36 तो 11 के बाद और 36 एक्स्ट्रा दिखाएगा तो 11:36 दिखाना चाहिए आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए लेट्स चेक द आंसर yes it is option B in this sum from a group of 7 men and 6 women 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are selected at least 3 men का मतलब ये वाला सम लंबा जाने वाला है बिकॉज इसमें एक केस नहीं मल्टीपल केसेस बनेगा तो मल्टीपल केसेस आर at least 3 men तो 3 men 2 women बाद में 4 men 1 woman all 5 are men
तो ऐसे वाले 3 केसेस बनेंगे, तीनों का कैलकुलेशन अलग अलग से बैठेगा. इट्स अ 7C3, so this will be 7C3 and 6C2. So this is for men and this is for women. Similarly यहाँ पे 7C4 which is also equal to 7C3 into 6C1 which is 6 and यहाँ पे 5 तो 7C5. तो ये इस हिसाब से मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. 7C3 and 6C2, let's calculate. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 6C2, 6 into 5 upon 2 into 1, तो मतलब वो 2 ही है. ये 6, 35 into 15. So this is 35 into 15. यहाँ पे भी this will come the same. 7C4 and 7C3 are the same. So 35 into 6. Actually नंबर कैलकुलेट मत करना. 7C5 7 into, तो 7C5 7C2 into 2. So this is 3, 21. So it will be from a group. अब इनको मुझे ऐड करना है. It will be either this case or this case or this case. तो 35 into 15, 35 into 6, 35 into 21, 750, 735, 735 plus 21, 756. The answer should be 756. Let's check the options. Yes, the answer is 756. ये एक permutations में ज्यादा तुम ट्रिक्स नहीं लगा सकते. They are to be done in a proper manner, which is why I keep them in the technical part. तो मेरा पूरे पोर्शन को डिवाइड करने का तरीका बहुत अलग है. डिवाइड द क्वेश्चन इनटू कैलकुलेटिव, टेक्निकल, उस हिसाब से मैं अलग अलग टॉपिक सिखाता हूँ. कैलकुलेटिव में रिलेटेड ट्रिक्स होती है जो एक दूसरे में अप्लाई होती है. टेक्निकल्स में रिलेटेड अप्रोचेस होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में लगते हैं. लेट्स स्टार्ट. द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ 2 men is 10 and 10 years. 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one. Again इसमें इक्वेशन मत बनाना, ऑप्शंस पे जाओ. समझो अगर 45 होता था, द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन, प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन, अब उनका डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है. 15 साल पहले ही वुड हैव बीन 30 एंड यंगर वन वुड हैव बीन 20. द प्रेजेंट इट वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर, तो ये गलत है, तो ये नहीं चलेगा. लेट्स टेक 35 में से 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 20 एंड 10 साल छोटा जो था उसका 10. दिस गिव्स मी योर आंसर. द आंसर इज 35. सिंपल. You should know कहाँ पे ऑप्शंस यूज करना है, you should know कहाँ पे ऑप्शंस नहीं यूज करना है. You will see a lot of YouTubers telling you अरे सीईटी में तो पूरा ऑप्शन से सॉल्व करो. नहीं, इट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी. अगर तुम सब कुछ ऑप्शंस एलिमिनेशन से करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, एंड अगर कुछ भी टफ आ गया ना तो यू विल बी एब्सोल्युटली इन अ वेरी बैड प्लेस. सो डोंट डू इट. The value of this into 25 square, that is 5 raised to 4. तो 112 into 25, तो 112 into 25 कर लो. So that is into 5 into 5, that is 560. 560 into 5, 2500 plus 300, so 2800. 2800 into 100 by 4, 700 into 100. तो answer should be 70,000. Option A. Yes. Mental calculation extremely important. थोड़ा बहुत तुम यहाँ कभी कुछ गलती करो, but try to do a lot of mental calculation. Which of the following numbers is divisible by 3? सबसे इजी वाला पहले उठाएंगे. सबसे इजी वाला ये दिख रहा है क्योंकि कम नंबर्स है. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको पता है दैट इट इज, सबका एडिशन करो, 3 से डिविजिबल है तो टोटल डिविजिबल है. 4 + 6 + 2 10 12, यही आंसर आ गया. आंसर इज ऑप्शन सी. बाकी किसी को चेक मत करो. A boat goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour, and it goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go 5 in stationary? अब देखो, 1 घंटे में वो ऊपर, let's just calculate स्पीड का डिफरेंस देख लेते हैं. यहाँ पे कितना है 2 kilometers per hour in what? Upstream speed against the, तो upstream is 2 kilometers per hour. डाउनस्ट्रीम को 1 घंटे में बना दो 6 किलोमीटर पर आवर. इन दोनों का एवरेज दैट इज 4. दैट शुड बी द ओवरऑल द मैन का स्पीड. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 इन स्टेशनरी वाटर? इट विल टेक 1 hour 15 minutes. आंसर इज ऑप्शन बी. इक्वेशंस इसमें बनाने की जरूरत नहीं है. 1 hour 15 minutes. ओके.
What is the present worth of 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? 5% simple interest per annum मतलब 10% लगेगा, 132 बन जाएगा. That will only happen with 120. आंसर ऑप्शन बी 120. ये देखो 120. Find the wrong number in the series. Into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 बनता है क्या? नहीं. into 3 27 plus 1 28 आएगा. This is wrong. तो 356 is the wrong one. Answer option E. 3 numbers are in the ratio 3, 4 and 5. Their LCM is 200. तो let's just check. वो 3 numbers 3, 4, 5 है जिनका LCM 200 है. तो 3, 4, 5. Let's just check. 3, 4, 5, 12. तीनों का डिफरेंस तो वैसे कुछ मिल नहीं रहा है. HCF 12 है. 12 का इसका कोई फैक्टर बैठना चाहिए. तो 12 एंड 200 के हम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे छोटे छोटे. 212. तो 200 का फैक्टर सबसे छोटे वाले फैक्टर से 20 से चालू करेंगे. 20 विद HCF? नो, इट कैन नॉट बी. तो कैन 200 बी दी HCF? 200 तो एक्चुअल नंबर है. 200 से ज्यादा नहीं होगा. 200 इज द अपर लिमिट, सो इट हैज टू बी ऑन द लोअर साइड. लेट्स फिगर आउट 120. कैन इट बी 120? 12 इंटू 10 काफी बड़ा हो जाएगा. देयर HCF, तो मुझे तीनों नंबर ही निकालना है ना. 3, 4 एंड 5. 12 इंटू 200, तो तीनों को इंटू 200 कर देते हैं. 600, 800 and 1000. And LCM 2400. इनका HCF निकाल देंगे. इनको थोड़ा और कट डाउन करते हैं. 300, 400, 500. 3, 4, 5 वही बैठ जाएगा. तो इट डजंट मेक एनी सेंस. तो इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, इनका HCF ही निकाल देंगे. एंड आई विल फाइनली हैव टू टेक द HCF एज व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल अमंग ऑल थ्री ऑफ देम. 40 ही लेना पड़ेगा. वो सबसे इजी बैठता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बाकी तो नहीं बैठेगा. तो यस, should be option C, that is 40. Yeah. A pineapple costs ₹7 each. हर एक पाइनएप्पल का कॉस्ट 7 रुपीज है. A watermelon costs ₹5 each. X spends ₹38 on these fruits. The number of pineapples purchased is. बहुत सिंपल. तुम्हें जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल्स निकालने हैं कि उससे कब 5 का एक मल्टीपल ज्यादा 38 बनता है. 7 प्लस कुछ भी कर लो, 5 का मल्टीपल नहीं आएगा. देखो 7 के मल्टीपल के बाद लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 से बढ़ाएंगे तो इतना आना चाहिए. 7 के टेबल में 3 आता है, जल्दी नहीं. 9 से मल्टीप्लाई किया तो आता है लास्ट में 3. सो आई हैव टू डू 7 into 4, 28. सो देयर आर 4 पाइनएप्पल्स एंड प्लस, सो गिव्स यू 28 रुपीज. एंड बाद में 10 रुपीज 2 वाटरमेलन से आएगा. सो नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज्ड इज 4. आंसर ऑप्शन बी. Aman started a business by investing 70,000. Rakhi joined them after 6 months with an amount of 1,05,000. Sagar joined them with 1.4 lakhs after 6 months. The amount after another 6 months, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively. Aman, Rakhi and Sagar वही रेशियो में, वही ऑर्डर में पूछा है. तो आई विल डू 70, 105 एंड 140. एंड कितने महीने के लिए रहा? ये 6 पीरियड्स के लिए रहा, ये 5 पीरियड्स के लिए और ये 4 पीरियड्स के लिए. आई जस्ट चेक कहाँ कहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है. यहाँ पे 5 कट हो सकता है, 7 भी कट हो सकता है. 7 into 10, 7 into 15, 7 into 20, 5 into 4, 5 into 2. तो यहाँ आ जाएगा 12, 15 and 16. The answer should be 12, 15, 16. Answer option A. That's easy. अब DI में आ गए. DI और CET इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन. बहुत मजा आता है करने के लिए. ये पूरा का पूरा तुम्हें ओरली ही सॉल्व करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा विजुअली इसको सॉल्व करो कि जो स्पेशली ये जो DI विजुअल होते हैं, ग्राफ, पाई, इन सब में लिखने की आदत मत लगाओ. लेट्स सी, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट एग्जैक्टली. व्हाट इज द रेशियो? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन लाख टन्स बाय कंपनीज XYZ ओवर द इयर्स. ओके. Ratio of average production of company X during the 2008 to 2010. Company X का average 25, 50, 75, 75 plus 40, 115.
डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बाद में करेंगे। 25, 50 एंड अच्छा, व्हाट इज द रेशियो दिया गया है, तो 125/3, तो 115 ही ले लो क्योंकि एवरेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 कैंसिल होने वाला है। तो y का ले लो, विल बी 35 प्लस 40, 75 प्लस 50, 125। 5 इंटू 23, 5 इंटू 25, 23:25। आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। What is the percentage increase in production of company Y from 2006 to 2009? कंपनी Y का परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 9, दैट इज 25 से 40 तक का इंक्रीज इज 15, 60% इंक्रीज। आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years was maximum for which company? एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years। ये देखो, तुम्हें ढूंढना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना था, एवरेज प्रोडक्शन देख के फायदा नहीं है। ये देख, लेट्स जस्ट कंपेयर। एक्स ज्यादा, y कंटिन्यूसली काफी कम है, तो y तो टॉपर नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ एक में वो सबसे ज्यादा है। तो मुझे सिर्फ x और z का देखना है। 5 कम है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे सेम हो गए। यहाँ पे z इज 1 2 3 4 मोर, x इज 3 मोर, तो z इज 1 मोर। यहाँ पे z इज 1 मोर, x इज 1 मोर, तो बाय डिफॉल्ट x और z का इक्वल हो गया। ओके, तो by default production for 5 years will be maximum for x and z both. Answer option E. What's the difference between the production of company Z in 2008? Z 2008 is 45 and Y 2006 is 35. So 10 lakh tons. अच्छा, Y in 2006, oh my god, I'm really sorry, 25. तो इट हैज टू बी 20 लाख टन्स। आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। तुम्हें यूनिट्स याद रखने बहुत जरूरी है, यहाँ पे दिया हुआ है लाख टन्स, सो आंसर शुड बी 20 लाख टन्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई? मैक्सिमम मतलब लोएस्ट पॉइंट से ही चालू करने का। बाय डिफॉल्ट यू कैन सी ये 2006 2007 शुड बी द आंसर बिकॉज लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे जा रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट है। So answer is option C, 2007, right? Now let's do this. 46. अपना almost खत्म हो रहा है पूरा section and we did it pretty fast. While explaining also, distribution in area acres under various food crops. Okay, ठीक है। The total area under was 1 million acres. What is the area under rice? Total area under जगह, तो ये इसका 4 times है, तो 1.5 का 4 times हो जाएगा, should be answer 6. The yield per acre of rice was 50% more than that of barley. तो rice का is 3, barley का is 2. Then the production of barley is what percentage that of rice? 2 into 36, 3 into 72. So that is 72 divided by 72 into 3, that is 1 by 3, that is 33.33. Answer option A. Which combination of the 3 crops contributes 50% to the total area under the food crops? Total area under food crops. Let's see, पहले बड़े वालों को ही लेते। एक मिनट, यहाँ पे क्लियरली दिख के आ रहा है दैट ये 50% है। सीधा लाइन बैठा ना जहाँ भी सर्कल में, दैट इज 50%। तो लेट्स जस्ट इवन चेक, 144, 144, 180 परफेक्ट है। दैट्स बार्ली, व्हीट एंड राइस। मुझे लगा कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना भी नहीं है। बार्ली, व्हीट एंड राइस, wheat, rice, wheat, barley. Answer is option B, rice, wheat, barley. If the total area goes up by 5%, and the area under wheat goes up by 12%, then what will be the angle for wheat in the new pie chart? wheat का एरिया कितने से इंक्रीज होता है? 12% से इंक्रीज होता है। What will be the angle for wheat in the new pie chart? ओके, ठीक है। टोटल एरिया 105 से इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल एरिया, सो एंगल फॉर वीट बोला है ना, तो लेट्स जस्ट से 72 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100 वैसे भी कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय 360 एंड यहाँ पे इंटू 360 कर देंगे, इंटू 105 बाय 100 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये इंटू 5, ये 5 से कट करना है, तो ये आ जाएगा 72। 5 into 21, 3, 7 into 3, 24, 7 into 1, 6, 16, 15,
24 एंड यहाँ पे 15 1 पॉइंट समथिंग, तो 24 से जस्ट ज़्यादा वाला नहीं, पर उससे ज़्यादा रहेगा बिकॉज दिस इज 76.8 इंटू 360 इंटू 24 16 7 7 7 15 3, हाँ 3 कैंसिल किया ना यहाँ पे, तो इट हैज़ टू बी दिस 3.2 इंटू 76 करेंगे, 76 प्लस जितना भी होगा 4.8, तो 72 प्लस 4.8 76.8, आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। Calculation, nothing else guys, just calculation. If the ratio between, if the production of wheat is 6 times that of barley, okay, what is the ratio of yield per acre of wheat and barley? बहुत simple, अगर इनका area is 1:2 and total production 1:6 है, तो इसका मतलब the yield per acre is 3:1, wheat का 3 है and यहाँ पे 1 है, wheat and barley is 3:1, answer is option A. And you see answer is option A. So yeah, we're done with the entire quants का paper. But what I want you guys to understand is that if you notice मैंने पेपर में बहुत सारी चीजें ना ओरली ही सॉल्व की, ज्यादातर एक्चुअली लिख लिख के सॉल्व करने की आदत बहुत खराब है, and this is what I also teach my students to do. Crack test में always I'm teaching the students orally solve करो. I make sure that in the end of the lecture every sum is getting solved orally. सबको पता है कौन से sums orally हो सकते हैं, सबको पता है कौन से नहीं हो सकते, and I make it a rule to make sure that they are calculating each and every day. So yes, we are in a great place. I hope you guys like the solving. If you guys want more such solvings, then please put it down in the comments, and please hit the like button. It takes a lot of effort to make all these videos for you, and that is honestly the only motivation for me. Just like and comment and subscribe to the channel. ठीक है, चलो, thank you so much guys. I hope this video was helpful.